હેલો સ્ટુડન્ટ, ટુડેઝ JEE ડિફરન્શિએશન વિકલન પર આધારિત આજે આપણે JEE લીધેલું છે. નાઉ second order derivative is very important topic in differentiable और differentiability. So second order derivative का आज JEE हम कर रहे हैं. Concentrate over here. Very important sum. If 2x equals to y raised to 1 upon m plus y raised to minus 1 upon m, then to prove that this part x square minus 1 y2 plus x y1 equals to m square y. स्टूडेंट, जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको प्रॉपरली फर्स्ट अप्लाई कर देनी है. तो नाउ टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ओवर हियर, सो दिस बिकम्स 2. This is 1 upon m y raised to 1 upon m minus 1, or because of derivative with respect to x, y is our implicit function dy by dx. Minus 1 upon m y raised to minus 1 upon m minus 1 dy by dx. Now after first डेरिवेटिव करने के बाद थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जहां तक हो सके वहां तक सिंप्लीफाई करना है कि जिससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टाइम पर वो हमको इजी रहे. तो यहां पर हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2, here it is y raised to 1 upon m, y raised to minus 1 becomes denominator, it is my, minus this is y raised to minus 1 by m, and here it is m, y raised to minus 1 is y, and taking dy by dx common. Now in the second order derivative डिनोमिनेटर से अच्छा है न्यूमरेटर, तो my को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2my इक्वल्स टू y रेज टू 1 by m माइनस y रेज टू माइनस 1 by m dy by dx. नाउ ये सम लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन ध्यान से प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो ये सम का जो आंसर लाना है वो आंसर में ये वाला स्टेप हमको कहीं नहीं दिख रहा है. आज આપણે લાવવાનું છે આન્સર, એની અંદર 2x equal to whatever given એ આપણાને દેખાતું નથી. સેમ વે when we take first order derivative, y raised to 1 by m minus y raised to 1 by m is obtained, જે આપણાને જોઈતું નથી for the prudent part. So what is the procedure over here? Now concentrate over here. Here plus and here minus, that is the only difference. Here plus and here minus, that is the only difference between two given parts. So taking square on both the side, so 4m square y square equals to y raised to 1 by m whole square plus y raised to minus 1 by m whole square minus 2 y raised to 1 by m y raised to minus 1 by m and dy by dx whole square, dy by dx whole square. So this is taking square on both the side. Now student, concentrate over here. 4m square y square. Now this is a square plus b square, a square plus b square. Now we want this term over here. So a square plus b square is a plus b whole square minus 2ab. हमने लास्ट टाइम भी एक बार JEE में देखा था कितने पार्ट में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो ओवर हियर दिस इज y raised to 1 by m plus y raised to minus 1 by m whole square minus 2
y रेस टू 1/m, y रेस टू -1/m, और ये तो हमारे पास था ही -y रेस टू 1/m, y रेस टू -1/m, ब्रैकेट कंप्लीट dy/dx whole square. Now student, this is 4m square y square equals to, this is 2x whole square, और माइनस ये कट -4, and this is dy/dx whole square. तो स्टूडेंट, when we get second order derivative, अगर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, हमारी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है उसको निकालने का, એને કાઢી નાખવાનું પ્લાનિંગ પહેલાથી જ કરવું પડે, ત્યારે એક સમ પ્રોપરલી આન્સર શો કરશે. અગર આને કાઢવાની એરેન્જમેન્ટ આપણે પહેલાથી ના કરીએ, સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવમાં તૈયાર કરતા પહેલા જો આને આપણે કાઢવાનો ટ્રાય ના કરીએ તો સમ કદી પોસિબલ ના બને. સો ધીસ ઇઝ ધ વેરી ફેન્ટાસ્ટિક લોજિક ફોર ધીસ સમ, કે when you get after first order derivative, when you get this, तो ये पार्ट हमको आंसर में नहीं चाहिए, ये पार्ट हमको आंसर में नहीं चाहिए, तो आ पार्ट अगर आंसर में नहीं जोईतुं, तो what is the way to reduce this part? So the way is apply a square plus b square, a plus b whole square minus 2ab. So I will apply over here squaring. After squaring, this is a square plus b square. Now after a square b square, this is the factor, and substitute value over here, that is 2x. So this is reduce. तो ये रिड्यूस करने वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, टू प्रूव दैट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है वो रिक्वायरमेंट को डिलीट करो, और वो डिलीट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो लॉजिक अप्लाई करता है वो सबको इजी या हार्ड बनाता है. यहाँ पर ये जो रिड्यूस करना है इसको अकॉर्डिंग टू दिस, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको एग्जाम में ये सम कर रहे हो, ये फैक्टर अप्लाई करना है, वो माइंड में नहीं आया तो सम पॉसिबल नहीं है. ओवर हियर 4 कॉमन एंड कैंसल, सो दिस इज m square y square equals to x square minus 1 dy/dx whole square. Now then taking first derivative on both the side, first order derivative now here complete. आप देखोगे कि बहुत सारे टर्म्स हमारे मैच होने लग गए हैं. Now after this taking derivative on both the side, that is second order derivative, so this becomes m square 2y y1, m square which is constant, y square 2y y1. Over here multiplication rule, first as it is, derivative of second, that is 2 dy/dx d square y upon dx square, that is y2, plus second as it is derivative of first. Now here 2y1 कॉमन एंड कैंसल करो, 2y1 कॉमन एंड कैंसल करो, तो आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर द JEE. नाउ आफ्टर दिस सम नंबर 2, y equal to sin pt, x equal to t, and prove that this, as usual, parametric function of derivative, y equals to in terms of t given, x in terms of t given. So that parametric form of derivative over here, so dy/dt, that is cos pt into p, dx/dt, that is cos t. Now dy/dx equals to dy/dt upon dx/dt. So this becomes cos pt into p upon cos t.
नाउ स्टूडेंट dy बाई dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। वंस अगेन आप अगर ऑब्जर्वेशन को फॉलो कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन में देखो जो हमारा टू प्रूव दैट पार्ट है उसमें कॉस भी नहीं है और साइन भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में टर्म्स आ रखा है cos pt एंड cos t वो रिड्यूस करना है। जैसे यहां पर माइनस आ रखा था उसको रिड्यूस करना था, डिसीजन टेकिंग फ्रॉम टू प्रूव दैट पार्ट। तो यहां पर भी हमको एक डिसीजन लेना है कि टू प्रूव दैट पार्ट में देयर इज नो कॉस, देयर इज नो साइन। सो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आ रखा है उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए जो माइंड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिक, और वो लॉजिक सबको इजी या हार्ड बनाता है। नाउ ओवर हियर dy बाई dx दिस इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर pt इंटू p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। So dy by dx that is equals to under root 1 minus y square into p upon under root 1 minus x square. Now taking square cross multiplication over here, dy by dx root 1 minus y square into p, taking square on both the side। तो ये हमारा सम का जो टर्म्स है जहां से हमने लॉजिक लिया था वो लॉजिक था कि भाई कॉस और साइन रिड्यूस हो जाना चाहिए, वो रिड्यूस हो गया। जो हमारी रिक्वायरमेंट है टू प्रूव के लिए वो सारा अवेलेबल हो गया। नाउ दिस इज रेडी फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर अब आप यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये दोनों सम हमने जो किए हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टू प्रूव दैट के लिए, तो हमने क्या किया यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया कि टू प्रूव दैट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में टर्म्स आ रखा है वो तो अवेलेबल है ही नहीं। तो हमने ट्राई किया कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है उसको रिड्यूस करे। ओवर हियर cos t को हमने रिड्यूस करना है, यहां पर y रेस टू 1/m माइनस y रेस टू 1/n को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हमने लॉजिक लिया। ये सेकेंड वाले सम में हमने आइडेंटिटी यूज किया cos square x प्लस sin square x इक्वल्स टू 1। सो cos square x इक्वल्स टू 1 माइनस sin square x लॉजिक लिया। यहां पर हमने हेल्प ली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फैक्टर की, जो फैक्टर करने से हमको ये वाला पार्ट मिला, जो सब्स्टिट्यूशन करके वो जो हमारा अनरिक्वायरमेंट टर्म था वो रिड्यूस हुआ। तो स्टूडेंट दिस इज द JEE। जो है उससे थोड़ा हाई सोचो, जो गिवन पार्ट है जो ऑप्टेन पार्ट है उसके बीच में ब्रिज बनाओ कि गिवन में से ऑप्टेन कैसे कर सकते हैं। तो JEE के कोई भी सम हो वो इजीली आप परफॉर्म कर पाओगे। नाउ स्टूडेंट JEE के हमने दूसरे सम्स दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सम। फर्स्ट सम x गिवन, y गिवन, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू π/4। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज पैरामीटर ओवर हियर? थीटा। सो आपको फाइंड आउट करना है dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा एंड dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। लेकिन ये सब हमने यहां पर क्यों रखा हुआ है? तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो x, तो dx बाई डी थीटा करोगे तब उसकी डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर मैंने आपको डेरिवेटिव के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सम है, डेरिवेटिव का कोई भी सम है, उसको अगर सक्सेसफुली हैंडल करना है तो उसकी कंपेयर करो लुक लाइक। तो अगर यहां पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और स्पेशली यहां ये वाले टर्म में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लुक लाइक log x। What is the derivative of log x?
1 अपॉन x डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x करोगे तो tan थीटा बाई 2 होगा। नाउ आफ्टर डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो लुक लाइक tan थीटा। tan थीटा की डेरिवेटिव होगी sec स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई 2। सो यहां पर मैंने ये सम यहां tan थीटा बाई 2 के डेरिवेटिव के लिए दे रखा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर tan थीटा बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा बाई 2 करेंगे sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसका जो कनेक्टेड होता है डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई 2 वो भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप डेरिवेटिव करो आपको फॉर्मूला बोलना है लुक लाइक, और जब भी फॉर्मूला बोलो ओरिजिनल बोलो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्टूडेंट बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं cos x, 100% रॉन्ग। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x डी बाई डी एक्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन जो एडजस्टमेंट का होगा, लुक लाइक का वेरिएशन होगा, वो आप एडजस्ट कर पाओगे, कभी भी डेरिवेटिव आपका रॉन्ग नहीं होगा। सम नंबर 4 वंस अगेन, डेरिवेटिव तो इजी है उसकी, y इक्वल्स टू दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज tan इनवर्स x। तो ये सब मैंने इसलिए रखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स करना है, डायरेक्टली इसका dy बाई डी एक्स करना है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। वंस अगेन लुक लाइक डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x लुक लाइक। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x। 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहां पर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी यहां सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफिकेशन जो करना है that is very important over here. So for the simplification look like tan inverse x, इसलिए मैंने ये सम परफॉर्म कर रखा है यहां पर। Now over here फिफ्थ एंड सिक्स सम, आई थिंक ये हमारी बुक में भी है या हमने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। So the given part is x raised to y equals to e raised to x minus y. Taking log on both the side because variable raised to variable is given. So this is y times log x equals to x minus y log e to the base e, that is equals to 1. अगर लॉग में कुछ भी नहीं है तो टू द बेस ई हम बोल सकते हैं, जो हमारा जनरल लॉगरिथम हुआ। तो ये हुआ हमारा y, ये x माइनस वाई दिस वे, y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब जब हमने उसको डेरिवेटिव के लिए तैयार किया, तो तैयार करने से पहले हमको एक बार टू प्रूव दैट पार्ट देखना ही है। स्टूडेंट, टू प्रूव दैट पार्ट, जब भी ये टाइप का सम आवे साबित करवानो જ્યારે પણ सम आवे, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जब भी हमारे पास टू प्रूव दैट सम होगा तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मींस गिवन पार्ट को ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्टेन पार्ट को ऑब्जर्वेशन करो, तब आपको उसका लॉजिक पता चलेगा। अदरवाइज टर्म्स आगे बढ़ेंगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। जैसे यहां पर हम गिवन पार्ट और ऑब्टेन पार्ट दोनों को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, गिवन और ऑब्टेन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम डेरिवेटिव करने चले जाते हैं, तो सम होगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। सो व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर? अगर आप दोनों के आंसर को देखो तो दोनों के आंसर में एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल गायब हो चुका है। dy बाई डी एक्स में दो वेरिएबल है, आंसर में ओनली x है। dy बाई डी एक्स आंसर में ओनली y है। तो ये हमको शो कर रहा है कि जब भी ये सम परफॉर्म करना है तो y को सब्जेक्ट लेके डेरिवेटिव करो, और जब भी ये सम करना है तो x को सब्जेक्ट लेके डेरिवेटिव करो, तो हमारा आंसर परफॉर्म करेगा।
तो स्टूडेंट ये हमारे इंपॉर्टेंट सम्स थे JEE के। रिमेनिंग सम्स न्यू टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट टाइम के JEE में लेंगे। कॉन्सेंट्रेट करना है, लॉजिक बनाना सीखो, सम के लिए आइडिया जनरेट करना सीखो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर।